फैसल साहब, दिस इज वेरी 104 में इंपॉर्टेंट नॉमिनेशन है उसकी। फैसल साहब, जो माय लॉर्ड मंतुखेल साहब ने पूछा है जी, जब आपने ये 82 लोगों ने जब अपने रिटर्न्स फाइल किए थे उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन शो की थी। जी शो की थी। दैट्स द पर्टिनेंट क्वेश्चन। फिर आप चले अगर आप इसको इसी यहीं से ले लें जी। तो फिर हमें आप सिर्फ ये समझा दें कि ये किस तरह से इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। जी, मैं उस पे भी आता हूँ। ये इंडिपेंडेंट थे या किसी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी थी? These were independent. The reason being To show us from the law Yes. whether they were Yes. independent or they were affiliated with any party. there was litigation on this, and the election commission declared that you cannot stand as a PTI candidate. You are independent. इस पे litigation. Then question arises whether keeping in view section 66 को बाद में हम पढ़ लेंगे जी। कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि जी। एक पार्टी किसी को नॉमिनेट करती है, एफिलिएशन सर्टिफिकेट दे देती है और वो कैंडिडेट की भी ये ख्वाहिश है कि मैं फलां पार्टी से आऊँ, जी। क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है कि वो उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये इख्तियार उस कैंडिडेट को है कि एक दफ़ा वो कागजात जमा कर दे एक पार्टी की तरफ से, वो उस पार्टी से वापस निकल सकता है? Yes. नंबर 2। Yes. नंबर 3, क्या उस पार्टी ने जिसने सर्टिफिकेट दिया है वो इसको एक्सपेल कर सकता है जब वो सीट जीत जाता है? This will go. Your lordship has raised very pertinent question, and the issue is This is, I think, as far as I'm concerned, this is the- बहुत important question, and the central question. Please note that. Can we just get the factual aspect out? Now, I just wanted to know all these political parties who are the beneficiaries, any of them supporting you before us? No, I just want to ask them. No, I don't Because- think so, sir. No, let's ask them. The beneficiaries, sir. No, एक सेकंड, ये देखिए आपने लिस्ट किया है ना, MQM is it represented? जिन्हें or- माने गनीमत मिला है, वो तो support नहीं करे। I just want to know who stands where. MQM is represented or not? Is Pakistan People's Party represented? जी, फारूक नाइक साहब हैं। आ जाए जरा जी। पहले तो ये बताएं, आपका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है? Pakistan People's Party parliamentarian. Are you supporting them or opposing them? Opposing them. ठीक है। अच्छा, next comes Pakistan Muslim League N. Is it represented? जी, We're also opposing them, my lord. you're also opposing them. और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं? सर PMLQ जो है, जिसे PML जमात कहते हैं। उलमा इस्लाम पाकिस्तान। जी। Is it represented? जी, वहीं से बता दें। वहीं से बता दें। Supporting or opposing? अपोजिंग, मगर इसमें एक और इशू है, आप इशू छोड़ देना, सिर्फ बता दें supporting or opposing. अपोजिंग टू द पिटिशन। मतलब you want to retain the seats, ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? JUIF का ही मैं पढ़ता हूँ। F नहीं है, JUI पाकिस्तान है। ओके, थैंक यू। अगर एफ निकल जाए फिर आपकी क्या हैसियत होगी? चलें, ये बेनिफिशियरी वैसे तो पार्टी का कोई भी लीडर किसी से भी निकल जाए तो किसी की कोई हैसियत नहीं होती। अच्छा, वो ANP की तरफ से कोई है? नहीं, ANP की तरफ से। अच्छा, ANP is not represented before us. And what about the PTI parliamentarians? उनकी क्या पोजीशन है? Are they supporting you or opposing you? Are you opposing, supporting? Opposing. So you want to retain the benefit. सारे कवर हो गए. ANP is not And represented. इस्तेकाम- MQM, हाँ, इस्तेकाम वाले की तरफ से कोई है? इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी, हाँ? कोई नहीं है. 3 are not represented. MQM. ठीक, मैं पूछते है कोई? ठीक है, got it. Who are the other respondents you worried? So these are individual candidates who were in the notification. Please expand. सर, जो नेशनल असेंबली हुआ ये था कि Are they those who got elected? yes, they were notified, sir. But then there should have been 77 or 22. So this was in relation to KPK, and because they were represented by the People's Party, sorry, they were represented by their but party. are all of them before us? That's No, what not all of them are before you. Why not? They were not parties below, sir. No, but now if your appeal is allowed, won't they be adversely affected? Sir, I think they should be issued notice. या आपने पहले रिक्वेस्ट क्यों नहीं की थी ना आपने उनको पार्टी बनाया?
सर मैं पार्टी इसलिए नहीं बना सकता था बिकॉज दे वर नॉट पार्टीज बिलो बट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर पॉलिटिकल पार्टीज. They would not be represented below because you are the petitioner. नो बट दे वर रिप्रेजेंटेड बाय देयर पॉलिटिकल पार्टीज. ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको तो जो या फिर किसी को भी ना बनाया आप देखिए ना, जब एक जी candidate बिल्कुल को ये भी हो सकता है. आपका असूली मौक़िफ़ होना चाहिए ना. नहीं सर देखिए as they are not a necessary party because they are represented by their political parties. नहीं, जब वो नोटिफाई हो जाते हैं तो फिर जाहिर है They have sufficient party जरूर है, sufficient party. जो कल वो फाइल कर देंगे जी, हमें बगैर सुने फैसला कर देंगे. ये मैं इससे फिर हम क्या डिसएग्री नहीं करेंगे? HM साया पे करूंगा. rely मैं इससे करेंगे. डिसएग्री नहीं करूंगा. नहीं वैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में तो पार्टी रिप्रेजेंट करती है. जी. कैंडिडेट तो उनको तो लिस्ट देनी जी, होती है, अगर उसको हटाना हो तो वो हटा के. I would agree with the learned. I just questioned you. Sir, मेरे ख्याल में some and you've not arrayed others. मेरे ख्याल में एज अ मैटर ऑफ abundant caution उनको नोटिस जरूर जाना चाहिए. But we won't know the names, etc. No, we have the names. You'll have to provide the particulars and all that. No, it's in the CMA. Everything is provided. They can You'll be have to served. move an application with all the particulars so we can issue. I can do that. जैसे ये सब मौजूद है यहाँ. They can also be served through the election Yes, commission. yes. Because the election commission Then pass go on the ahead. details है. हाँ. अच्छा एक यहाँ बता दीजिए कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एज ए पार्टी पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन. नहीं. They did not. You are a political party? Yes. Can you show us your registration? सर ये ईसीपी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ऑर्डर में भी इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं. इसमें एक सवाल You मजीद have ऐड not करते participated हैं. My as a lord, party. नो वी डिड नॉट. my lord खान साहब के सवाल में एक और भी ऐड जी किया. क्या पार्टी कंटेस्ट करती है या पार्टी कैंडिडेट खड़ी करती है? नंबर 1 पार्टी कैंडिडेट खड़ी करती है 66 के तहत, और अगर वो तो कैंडिडेट खड़ी करती तो इसका मतलब है कि वो पार्टी कंटेस्ट करी. तो क्या पीटीआई ने कंटेस्ट किया था, कैंडिडेट खड़े किए थे? सर दिस इज ए क्वेश्चन. फैसल साहब मैं आपको आपकी मदद करता हूँ. मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने तरीके से आर्ग्यू करें, फिर हम आपसे बाद में सवाल पूछ लें तो बेहतर होगा. नो दीज आर वेरी No, आप नोट कर वेरी लें. ग्रेटफुल सर, वेरी मगर अगर वो आप अपने तरीके से आर्ग्यू करें ना, क्योंकि इतने वकील भी we've been in your position and sometimes becomes very difficult. सर अब योर तो लॉर्डशिप आप अपने ये सिर्फ फैक्ट्स आ गए हैं. जी. कोई और फैक्ट आप बताना चाहते हैं? कुछ तारीखें दे दीजिए 21 दिन को क्या होता है. हाँ ये मैं देना चाहूंगा सर. एंड देन मे बी आई कैन मेक एन एप्लीकेशन, दे कैन बी सर्व थ्रू. वो अभी तो फैक्ट्स दे रहे हैं. जी. हाँ. सर इसके लिए अगर मैं आपसे काइंडली सिर्फ ये जो मैंने एक नोटिफिकेशंस कंपाइल की हैं, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन विच हिज लॉर्डशिप जस्टिस मंसूर हैड आल्सो रेज़ कि वो डेट्स क्या हैं. तो अगर मैं काइंडली पेज 1 पे आ जाऊं. नंबर कौन सा? ये सीएमए नहीं है सर, ये मैंने सारे नोटिफिकेशंस. जी. आप एक्स्ट्रा कॉपीज दिए इनको? नहीं ये सर ईसीपी के सिर्फ नोटिफिकेशंस हैं. दिस इज द लॉ, दिस इज ऑल, दिस इज नथिंग. 2-4 कॉपीज करवा लेना, वो भी मैं दे देखेंगे. दूंगा, मैं दे दूंगा सर, मैं दे दूंगा. If we are referring to a दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. it is, then we जी मैं बिल्कुल दे दूंगा. they don't have internet access here. सर यहाँ तो अभी शायद लाइट भी चली गई. अच्छा सर पेज 1 काइंडली.